individuals as well who have been recognized for their work. This is a perfect platform, the perfect stage to give them so that we all have an idea what climate change is actually all about. We've been talking about heat wave, we've been talking about when it comes to electricity, renewable energy, all of this, how today they play an important role because we are almost running out of time. Exactly, and there's so many India-specific, India-relevant, India-centric solutions because we're a heterogeneous India, and that's reflected in our geography, in our 7,500-kilometer coastline, right? We've got Bay of Bengal to the east, we've got the Arabian Sea to the west, we've got the Indian Ocean to the south, and the Himalayas to the north. And if you combine that with our coastline, we are, of course, particularly vulnerable to climate change. And we have to take action, then action has to be taken now, because if we are thinking for a future, for our future generations, well, we cannot put them at risk, can we? So now, if this is time and room for improvement, it needs to be done now. And this is the very right stage, the perfect platform that has been given to all of these heroes. We are terming them and we are calling them as heroes because each one of them deserves to be called heroes. They deserve to be called warriors. And there's so much to do and there's such little time. So I think combating climate change is all about prioritization. But that is, of course, much, much, much easier said than done. All right. So in the meantime, the stage is now cleared. Thank you for bearing with us for some time, but let's continue with our next session as we want to use this platform and opportunity to engage in a dialogue with two of India's most revered land warriors. First, we have Padma Shri Jamna Tudu, known as the Lady Tarzan of India. Jamna ji, please stage pe aaiye, ma'am. Aapka bahut dhanyawad hamare saath judne ke liye. Lady Tarzan of India, who has unwavering determination, safeguarding the vast tracts of forest land, and also joining her is Padma Shri Jadhav Paiyong, who is the Forest Man of India. So Lady Tarzan and Forest Man of India on the same stage. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. All right. And with that, Amita, I will let you take over and interact with our two esteemed guests. Thank you so much, Pooja. नमस्कार, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए और हम जानना चाहेंगे जमुना जी कि आखिरकार आपकी जो अनुभव जहाँ तक रहा है, आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमने देखा है और जहाँ तक आपकी कहानी जितनी जानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है जमुना जी. अगर आप बता सके कि वो लगाव, वो लगन कहाँ से शुरू हुआ ऐसे लड़ने का, कि पर्यावरण के साथ आपका प्रेम जो है उसके बारे में ज़रा बताइए. पहले तो आप सभी को मेरी झारखंड की ओर से नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ. और आज आप इस क्लाइमेट चेंज के सभी सदस्यों को मेरी ओर से नमस्कार करती हूँ. मेरा नाम जमुना टुडू और मैं झारखंड के सुदूर गांव पूर्वी सिंहभूम जिला मुटुरखाम गांव से आती हूं. और मेरा जो 1998 में जब मैं शादी होके आई थी मुटुरखाम गांव में, और मेरा गांव का सामने में बहुत बड़ा उजाड़ा हुआ जंगल. पहले बड़ा बड़ा पेड़ था लेकिन माफिया लोगों ने काट के सब खत्म कर दिया था. जब मैं आई तो देखी पूरा उजाड़ा हुआ जंगल है. तो जब मैं जंगल लकड़ी लाने के लिए जाती थी गांव के महिलाओं का साथ में, तो मेरा मन में दुख लगता था जो भाई हम लोग जंगल को काट रहे हैं और अगर नहीं काटेंगे तो गांव के लोग खाना बनाएंगे क्या चीज में. तो इसीलिए गांव के महिलाओं का साथ में मैंने जंगल जाती थी लकड़ी लाने के लिए. और गांव के महिलाओं को मैंने बोला, दीदी हम लोग जो पेड़ काट रहे हैं, अगर इसी तरह हम लोग काटते रहेंगे तो जंगल तो खत्म हो जाएगा. तो गांव के महिलाओं ने बोली, दीदी अगर हम लोग नहीं काटेंगे तो खाना बनाएंगे क्या चीज के लिए. तो इसलिए जंगल तो हम लोग को काटना ही होगा. तो मैंने उन लोगों को बहुत
कोशिश किया समझाने के लिए, और लास्ट में वो सब महिला, मेरा जो गांव के महिला, सब महिलाओं ने समझ गया, और मेरा गांव का जंगल को जो मैं बचाने के लिए सफल रही 1998 से लेकर के कम से कम 2005-06 तक मेरा गांव का जंगल को मैंने सुरक्षा किया। उसका बाद में जब मेरा गांव के लोगों को समझ में आया जंगल का महत्व, तो फिर मैंने गांव से बाहर निकले। जब मैंने गांव से बाहर निकले, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, जैसे मेरा गांव में मैंने एक समिति बनाया, इसी तरह मैंने दूसरा गांव, तीसरा गांव में भी जंगल बचाने के लिए लोगों को जागृत करने का काम किया और समिति बनाया। जब मैंने धीरे धीरे गांव से बाहर निकली, तो मेरा साथ में जो मेरा आसपास में जो माफिया लोग थे, माफिया लोग है, वो लोग सक्रिय हो गया है। वो लोग बोल रहा है अगर जमुना टुडू जी इसी तरह गांव-गांव में लोगों को जागृत करने का काम करेगी तो फिर हम लोग का काम तो नहीं चलेगा जी। तो फिर वो लोग ने मुझसे, पर आपने इतनी बहादुरी आई कहाँ से जमुना जी? आपने तो माफियाओं के साथ सीधा टक्कर ले ली। तो वही तो बोल रही हूँ। तो फिर माफिया लोगों ने मेरा ऊपर में टारगेट किया और इसको किसी तरह हम लोग रोकेंगे, लेकिन मैंने नहीं रुकी और मेरा काम को जारी रखा। मेरा साथ में रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मेरा जो स्टेशन है वहाँ से बहुत सारा लकड़ी जाता था, तो मैंने उनको रोकने के लिए गई तो वहाँ पर माफिया लोगों ने टारगेट करके बैठा था, आपके ऊपर हमला किया, पूरा मेरा साथ में हमला किया, पूरा पत्थर फेंक दिया है, पूरा माथा में, शरीर में पूरा लोहन हो गया है। चोट लगी? चोट बहुत, मतलब चोट लगा। फिर मेरा जो घर में डकाती करा दिया गया है। अच्छा। 1:30 बजे रात को मेरा घर में डकाती लोग घुसा और हम लोग को धमकी देने लगा, अगर आप लोग इस तरह जंगल को सुरक्षा करने का काम कीजिएगा, लोगों को जागृत करने का काम कीजिएगा तो आप लोगों का जान जा भी सकता है। तो जब 1:30 बजे डकाती लोग घुसा, वो लोग का हाथ में पिस्तौल है, भुजाली है और धमकी दे रहे थे, लेकिन 1 मिनट के लिए थोड़ा सा डर तो लगा। तो हमने बोले भाई हमने क्या किया है जो आप लोग। बहुत बहादुरी का काम किया है आपने जमुना जी, क्योंकि आपने सीधे तौर पे एक वन सुरक्षा समिति भी खड़ी कर दी। वहां पे अब बताया जा रहा है कि बहुत सारी महिलाओं का भी अब योगदान रहा है, चाहे वो जंगल बचाने की अगर कोशिश में अगर जुड़ी हुई हैं। जादव जी के पास भी मैं जाना चाहूंगी। जादव जी, अगर आप माइक लेंगे और अपनी कहानी के बारे में जरा बताएंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के आसपास आपने इतना बड़ा जंगल खड़ा कर दिया सर, सबको पता ही नहीं चला। मेरा जो फॉरेस्ट है तो बहुत हिस्ट्रिकल एरिया, इंडिया के अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और म्यांमार का मेरा फॉरेस्ट में हुआ। मोहगस्ट में उधर ही जन्म हुआ था, लेकिन 1826 उधर ब्रिटिश लोग जब कब्जा 1826 24 फरवरी में नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश के अधीन गया था। तब मैं देखा बचपन से ब्रिटिश लोग ने ढाका और कलकत्ता को संभालने के मेरा फॉरेस्ट कोकिलामुख बरगुप में सामान उतारता और अपर असम डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन 1965 तो विरुषण के 10 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र का अंदर सदा गया। मैं गया उधर, मेरा 8-9 ईयर्स है। मैं जोरहाट 10 फुट के पेशकार का घर के रुक के मैं उधर ही पढ़ा था। जो पढ़ाया जी, वो 90 नंग बालीगांव प्राथमिक विद्यालय एक साइंटिस्ट है नीचे जी, वो लोग बचपन से सिखाया पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा। पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने, तो ऐसे ही मेरे को सिखाया। तो जादव जी, आपको कोई अनुमान है अभी तक आपने इतने सालों में कितने पेड़ लगा दिए? अभी तो करोड़ पेड़ हो गया। अभी 30 इयर्स में 550 हेक्टेयर ग्रीन करा। आज उधर ही फॉरेस्ट में शताधिक डियर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, राइनो है, 170 एलिफेंट है आज तक। मतलब आप बोल रहे हैं कि वहाँ फॉरेस्ट में, जंगल में शेर भी आप वहाँ रहते हैं, डियर और रैबिट, खरगोश की भी अलग अलग प्रजातियां हैं वहाँ पर। आपने तो एक जंगल खड़ा कर दिया अपने आप। जंगल खड़ाने से ये अनुभव भी है जी, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो 1950 में जब तो फ्रांस में हुआ था, मैं भी गया था जी, तो इकोनॉमिकल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज जी, तब मैं 195 देशों के पूछा आप लोग का इकोनॉमी के ऊपर इतनी जरूरत है जी, 1 मिनट उत्साह बंद करो, जी, ऑक्सीजन कितनी जरूरत है जी, जब पेड़ ने ऑक्सीजन देता है
वहाँ के 20,000 पीपल जी। अपन जिंदे के लिए एक एक पौधा लगाओ. ऑल ओवर वर्ल्ड 780 करोड़ पीपल एक एक पौधा लगाओ. तब बहुत ही धरती बढ़िया, माँ को तारीफ के भूल काबिल के है आएगा. सर जादव जी, आपने जो काम किया और आप दोनों को सरकार की तरफ से पद्मश्री की तरफ से भी अगर नवाजा गया है वो भी दिया गया है. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए और अपनी अपनी कहानी बताने के लिए. ट्रूली दे आर द लैंड वॉरियर्स एंड दे नीड टू बी एक्नॉलेज्ड फॉर द वर्क दे हैव डन. दे आर हीरोज विद अस राइट amidst us right here on stage. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जमुना जी और जादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. जी, एंड थैंक यू अमिता सारे सही सवाल पूछने के लिए. एंड आई वुड आपसे इंतजार करूंगी अमिता कि दैट यू प्लीज प्रेजेंट बोथ ऑफ आवर पद्मश्रीज विद अ सर्टिफिकेट दैट इज ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कमिटमेंट एंड द प्लान्स दैट वी हैव प्लांटेड in their name as a part of this wonderful initiative in which the Times Network has partnered with Sankalp Taru Foundation. These are special moments, ladies and gentlemen, and we want to treasure them. We all know how planting a tree offsets the carbon footprint, so we could think of no better way to share our appreciation. Well, many of you may be unfamiliar with this figure. I certainly was, Amita. And that is that the world has been chopping down 10 million hectares of trees annually, which accounts for over 15% of total tree loss cover. And interestingly, nearly 95% of all such deforestation, ladies and gentlemen, takes place in tropical forests. Absolutely, and when it comes to, as we were talking about, our land warriors are also there. The kind of work that has been done on ground is tremendous. Imagining one person alone setting up an entire forest. We're not talking about any gardening skills, but those are some gardening skills to talk about to set up an entire forest. So, for our next session, ladies and gentlemen, we are now ready.